So, where are I? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So, we welcome all devotees to Sridham Mayapur. So, now today, first class of the whole camp will be given by Haldan Nitai Prabhu. So, Haldan Nitai Prabhu is also from IIT Kharagpur. Both of us studied together 5 years in IIT. And Prabhu has done BTech and MTech in biotechnology. And after that, after completing his course, he immediately joined Temple. He didn't have any corporate experience. He immediately joined Temple. And he served in guest reception department and flute preaching. And then after that, Prabhu moved to Mayapur in 2015, 14. He is teaching in Gurukul. He is studying under His Holiness Bhakti Vidyapur Maharaj, a 12-year Sanskrit study course. He is very matured and always a friend, but he is my senior and I take a lot of guidance from him. So I requested him to speak to all of you. So how many of you are coming from first time to Mayapur? You came before? Second time. You? You came a lot of. Anybody else is coming or? Huh? Anybody else is coming? Okay, let's start with some prayers. And, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Madhava Shri Radhe Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Harinam Sankirtan ki Jai. Both come friend. There's fan here. You can move friend. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanvitam Tan Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। So welcome all of you to Sri Dham Mayapur. So English is okay now for everyone? Okay. So how long, all those who are coming for the first time, how long you have been going to Calcutta temple? Yeah? You? This is my first time. No, Calcutta temple? Since how long you are going? 2 times. 2 times. You? हाँ. हिंदी will be better. Some would come. ओके. तो यहाँ पे जो पहले बार मायापुर में आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग कलकत्ता मंदिर में लाइक ना गए थे पहले? कल रात नहीं, उससे पहले सब लोग गए थे? कितने बार गए? Up to 2 years. और 2 years. आप? लास्ट 2 years. आप 2 बार गए. तो इसलिए पूछ रहा था कि आपको इस्कॉन में मतलब मंदिर में जाने कितना आदत है, कितना परिचय है इस्कॉन से, ये सब जानने के लिए पूछ रहा हूँ। तो आप देखे होंगे अभी इस्कॉन मंदिर नो कलकत्ता में, या फिर पहले भी कहीं और गए जाके देखे होंगे इस्कॉन मंदिर। तो आप लोग को इस्कॉन मंदिर में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप 2 साल से जा रहे? वहाँ पे सब भक्त लोग को देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिला। देख के जाके अलग ही सुकून मिलता। आपको? ये सबसे पहली बात है कि इस्कॉन का जो भक्ति करने का जो ये है स्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है अनदर की जगह में। यहाँ सबसे पहले एजुकेशन सबसे बड़ी मैटर रखता है, और अनदर जगह बाद में जो है भगवान का तो पूजा करना ही है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं माना जाता है कि डिवोटी को एजुकेट करते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आपको? तो कल्चर बहुत अच्छा है, और डिवोटी को देखने में कुछ मतलब सीखना, कुछ सीखते हैं उसको देखकर। आपको क्या अच्छा लगा? स्वादिष्ट भोजन मिलता है। बहुत अच्छा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपको? हाँ, एसोसिएशन एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट। आपको क्या अच्छा लगा? एनर्जी, डिवोटीज का एनर्जी बहुत अच्छा है। आप सब लोग क्या बोलते हैं, वेरी इंटेलिजेंट यू आर ऑल। प्रभुपाद ने जिस मकसद से इस्कॉन के मंदिर बनाया, ये सब ही है। भक्तों का संग नो, उसके थ्रू कल्चरल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और एजुकेशन देना चाहते हैं प्रभुपाद सबको। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया हर जगह। पूरा विश्व में प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी में थे 108 मंदिर उन्होंने खुद बनवाया। अभी तो 400-500 तो बड़े मंदिर है, उसके अलावा हमारा बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज़ है और यूथ सेंटर्स, ये सब मिलाएंगे तो बहुत हज़ारों है। तो ये मेन इम्पोर्टेंस था। और क्या है, एक व्यक्ति एक जगह पे भक्ति कर रहे हैं, उनको देख के आपको अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा, वो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सालों उनको याद रखेंगे। लेकिन वही चीज़ 10 या 20, 40, 50, 100 भक्त एक जगह पे रह के, एक मंदिर में रह के भगवान का आरती करके ऐसा कुछ सेवा करेंगे, उससे और हज़ारों गुणों आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। वो है इस्कॉन के मंदिर। जिसको भक्ति करने का इच्छा है, जिसको मतलब नो भगवान के प्रति प्रेम है, वो सब लोग एक जगह आके नो भक्ति करने का एक मौका दिया प्रभुपाद जी ने हमको। उसी के लिए मंदिर बनाया। बाकी सब मंदिर में बहुत कुछ चलता है, वो सब यही चीज़ के लिए।
ताकि सब भक्त एक साथ रह के अपने भक्ति को आगे बढ़ सके, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ सके। तो वैसे सब मंदिर बनाने के बाद प्रभुपाद जी ने 1972 में इधर श्रीधाम मायापुर में एक मंदिर बनाना चाहते थे। उस टाइम में तो भक्त लोग सोच रहे अरे विदेश में तो हमारे इतना अच्छा मंदिर, बड़े बड़े मंदिर है कि लॉस एंजलिस में है, न्यूयॉर्क में है। उस टाइम तक तो उनको इंग्लैंड में भी मिल गया था, मैनर में। जॉर्ज हैरिसन ने अपना बड़ा एस्टेट डोनेट किया था, इतने सारे। और प्रभुपाद चाहते हैं कि ये कौन सा गांव है जहाँ पे खाली खेती है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे अभी प्रभुपाद मंदिर बनाना चाहते हैं। और अमरीश प्रभु को बोलते हैं कि यहाँ पे एक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आना चाहिए, अद्भुत मंदिर आना चाहिए। तो कोई समझ नहीं पाया कि क्या महत्व है इधर का। तो प्रभुपाद जी ने सबको बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो और कई जगह है बहुत होली प्लेसेस हमारे लिए, काशी, बहुत सारा जगह है जो होली प्लेसेस माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी केवल वृंदावन और मायापुर में अपना इस्कॉन का सबसे बड़ा सोसाइटी बनाना चाहते थे। और वृंदावन को छोड़ के इधर मायापुर में इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स बनाया प्रभुपाद ने, क्योंकि ये पूरा हरे कृष्णा आंदोलन जो है वो चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के ऊपर चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी में आए क्योंकि हमारे जैसे बद्ध जीवों को भगवत प्रेम देने के लिए। इसी के वजह से आज हम सब लोग इधर बैठे एक साथ भक्ति करने। बड़े बड़े आचार्य आए बाद में, महाप्रभु के बाद में, उनके प्रिय भक्त, और प्रचार किए भक्ति के बारे में। और आज हम लोग इधर बैठ के ऐसे बात कर सके। इसीलिए ये जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है पूरा इस्कॉन के लिए। खाली इस्कॉन के लिए नहीं, पूरा विश्व में कलियुग में ये जगह का महत्व इतना है, कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं, उसका सीमा ही नहीं है कुछ। क्योंकि बाकी सब युगों में, सत्य युग, त्रेता युग या द्वापर युग, उधर आपको भक्ति करना है तो कैसे एक साधु आपके घर में आएंगे और आप अपना, अगर गृहस्थ है तो अपना कार्य कर रहे तो आपको आके एक उपदेश दे के जाएंगे, आप भक्ति करिए, ऐसा ऐसा करिए, हर दिन सुबह उठ के चैंटिंग करिए, हाँ भगवान की पूजा करिए, ऐसे बोल के चले जाएंगे। और आपको खुद करना है। और जब गृहस्थ जीवन छोड़ के वानप्रस्थ 50 साल के बाद जब वानप्रस्थ लेंगे, आपको सब छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट में जाना है और वहाँ पे अत्यंत कठिन तपस्या करना पड़ेगा। वो सबके लिए नियम है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। 50 साल के बाद कोई घर में रुकेंगे तो उनको इतना नीच दृष्टि से कोई सब लोग देखते हैं, क्योंकि वो लायक नहीं है, वो सब फॉलन, सोशल स्टेटस के हिसाब से वो फॉलन व्यक्ति है। 50 साल होने के बाद सबको घर छोड़ना ही वानप्रस्थ माने, एक्सपेशली मैन। माता जी हो तो घर में रह सकते हैं, उनका तो अलाउड है, लेकिन वो भी डिटैच रहना है। ऐसा नहीं है कि सब वो थाला सब इधर रख के रखते हैं ना, वो सीरियल में दिखाते हैं, वैसे नहीं चलेगा। सब बच्चों को देख के उनको खाली अपने भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा वैसे रहना है। तो वैसे स्ट्रिक्ट नियम था। और कलयुग में तो सब लोग इतना गया गुजरा है कि कोई कर नहीं सकता वैसा चीज़। तो उनके लिए क्या है, सब लोग अपने अपने जीवन, अभी तो कोई टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे, कोई लड़की के पीछे भाग रहे। ऐसा पहले तो नियम बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन कलयुग में तो धीरे धीरे सब पतन हो गया।
तो इस टाइम में क्या कर सकते हैं? कोई रूल ठीक से फॉलो नहीं कर सकते, तो ऐसा मतलब सबका उन्नति कैसे होगा? सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो ऐसे स्थिति में लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साउथ से हूँ, हिंदी में बोल रहे हैं तो वर्ड्स उतना जल्दी नहीं आते मुझे। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनको क्या करना है वो कोई नहीं जानता है। ऐसे स्थिति में चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले ये जगह पे उनका अवतार हुआ, और उनका एक ही गोल था कि ये जगह पे जितने सारे बद्ध जीव है उन सबको भगवत धाम लेके जाने का, और कुछ नहीं। जब भगवान कृष्ण आए, सबको मतलब न सबके साथ फाइटिंग किए, अपने एक खुद का राज्य बनाया, वो भी समुंदर के बीच में, बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेशन किया भगवान ने, और बहुत सारा चीज़ किया। भक्तों के प्रति प्रेम के अलावा बहुत सारा चीज़ किया। फिर महाभारत का युद्ध रचाना पड़ा, पांडव को देख के फिर पूरा वॉर होने के बाद सबको ठीक करना है, बहुत कुछ मैनेजमेंट किया। और भगवान रामचंद्र तो और भी ज़्यादा, पूरा लंका में जाके, फॉरेन में जाके, उधर हरा के फिर वापस आके और ज़्यादा करना पड़ा ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पूरा मैनेजमेंट कुछ नहीं, खाली पर्सनल सबको जाके प्रीचिंग ओनली, सबके उन्नति के लिए खाली भक्ति के बारे में प्रचार किया। तो वो प्रचार यहाँ से चालू किया चैतन्य महाप्रभु ने, और इसी के वजह से ये जगह पे उसके चैतन्य महाप्रभु के अवतार होने के बाद यह जगह पे इतने सारे बड़े बड़े आचार्य आए, और सब लोग यहीं पे रुके, यहीं पे अपने साधन भजन किए, यहीं से प्रचार किए हर जगह जाके। तो इस जगह में जो आप अभी तक आप लोग अपनी अनुभूति वो बता रहे कि हम लोग मंदिर में गए तो इतना अच्छा लगा। मंदिर में आप इस्कॉन मंदिर में, जो भी इस्कॉन मंदिर में आपको अनुभूति हुआ, उसको कम से कम 100 गुना एक साथ अनुभूति यहाँ पे हो सकता है, यदि आप प्लेन माइंड, मतलब अनबायस्ड प्लेन माइंड से यहाँ पे रहेंगे। तो इसीलिए जब धाम में आएंगे हम लोग, और कुछ चिंता नहीं करना है। अभी मैं 2 दिन के बाद जाऊँगा तो वहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे कॉलेज में कैसे है, कोई जॉब कर रहे तो अभी मेरे जॉब में क्या चल रहा है, बॉस क्या बोले, सब भूल जाइए। 2 दिन के लिए आया ना आप लोग, फिर मंडे तो चले जाएंगे। तो 2 दिन के लिए आया है, मतलब अब धाम में है खाली, बाकी सब भूल जाइए। 1-2 दिन माता पिता को कॉल भी नहीं करेंगे तो चलेगा। मैसेज कर सकता है, मैसेज, फिर कॉल करेंगे, कुछ इधर उधर का बात होगा तो मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पूरे 2 दिन के पूरा फ़ायदा लीजिए कि यहाँ पे आप जितने अनुभूति पा सकते हैं वो आप लोकल में जहाँ पे आप अपने मंदिर पे उससे 100 हज़ारों गुना है। इसीलिए पूरा इस्कॉन का डिवोटीज देश विदेश से, अभी तो गौर पूर्णिमा हुआ, बहुत सारे विदेशी भक्त थे आके गए। साल में एक बार इधर आने के लिए वो पूरा साल घटता है अपने अपने देशों में, ताकि उनके पास इतना पैसा है इधर आके 2-3 महीना अच्छे से रुकेंगे, भक्ति करेंगे, क्योंकि उनके लिए वीज़ा के लक्ष्मी लगता है। इधर आएंगे तो इधर रहना है, तो रहने का बहुत सारा व्यवस्था करना है, और उनके हिसाब से उनका तो बेसिक नीड्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम तो बहुत फॉर्चुनेट है, बगल में आप तो खाली एक लोकल ट्रेन पकड़ के आ गया, कल रात में मंदिर में सो के सुबह उठ के आ गया, 3 घंटे में पहुंच गया मायापुर, है ना। 2 घंटे ओ इधर तक आने में, स्टेशन से इधर तक आने में तो और 1 घंटा लगे।
तो 3 घंटे में मायापुर पहुंच गया, और वीज़ा वसा का तो चक्कर ही नहीं है हम लोगों को। वो लोग तो विदेशी लोग कितना मतलब तरसते हैं। मैं अभी बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, उनको इधर आके साल में 6 महीने से ज़्यादा कहीं नहीं रुक सकते आपके यदि विजिटिंग वीज़ा है। फिर हर साल आना भी मुश्किल है, हर बार क्वेश्चनिंग होता है कि क्यों जा रहे ये वो। हर एक कंट्री का अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, तो इतना वो एंडिवर करते हैं इधर खाली इधर आके ये अनुभूति लेने के लिए। अब बाकी लोगों को तो छोड़ दो, इधर जो सेटल हो गया उन लोगों को पूरा अपना देश छोड़ के सब छोड़ छाड़ के इधर आके अपने बच्चों के साथ वो सेटल हो गए। तो जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है वो जानते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम लोग को तो इन वन सेंस बहुत चीपली मिल गया। आ गया जब चाहे तो आ गए, 1-2 दिन रुक के फिर चला जाएंगे। फिर लगता है हाँ ठीक है, फिर भी आ सकते हैं बाद में, तो अभी उतना अच्छे से हम लाइक नो नहीं ले पाएंगे तो क्या है। लेकिन अब आए तो वैसे भी सोचना है तो सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप आए तो फुल बेनिफिट तो लेके जाए। और अभी तो कोरोना ये वो इतना चीज़ों में सब लोग घुस गए कि फिर वापस कब आएंगे पता नहीं। यदि आप नहीं जाना चाहते वापस इधर से इधर ही रुकना चाहते बहुत अच्छा है। कोई ऐसा डेस्टिनेशन तो इधर ही रहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन वापस तो आप लोग जाएंगे ही। तो इसीलिए अब ये 2 दिन बहुत अच्छे से जहाँ पे जा रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं, बहुत श्रद्धा से, बहुत अपना माइंड कहीं पे इधर उधर भटकना में नहीं, भगवान को ही देखिए। इधर इतने सारे भक्त हैं, सबका संग लीजिए और बहुत सारे प्रेयर्स कीजिए भगवान को, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार माना जाता है, करुणा अवतार। क्योंकि वो आए ही लाइक हम लोग सब पतित है जानते हैं, तो पतित पावन है वो तो आए कि हम लोग को सब उद्धार करने के लिए। इसीलिए कहीं और धाम में जाएंगे तो बहुत सारे नियम है, हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे, यदि आप कोई भी होली प्लेस में जाएंगे वहाँ पे कुछ भी करेंगे आप, बहुत सारे नियम है, बहुत सारा अपराध है, और अपराध करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भी होगा। लेकिन ये मायापुर ऐसा जगह है कोई अपराध नहीं है यहाँ पे, सेवा अपराध, धाम अपराध वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अपराध नहीं, एक अपराध तो हर जगह होता है, भक्तों के प्रति अपराध, वैष्णव अपराध, वो सब आपको देखना है। ऐसे इधर आके किसी से लड़ाई वड़ाई करने में, टोटो वाले वैसे भी सबसे कम लेता है यहाँ पे, 10 रुपये ही मांगते हैं वो, 10 से वो 15 रुपये मांग लिया दे दीजिए, ज़्यादा नहीं मांगता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा आपको चीट करने वाला भी नहीं है, उनका रेट्स भी फिक्स्ड है सब। तो यहाँ पे आएंगे जब, तो वो सब मेंटालिटी छोड़ देना है हमको, क्योंकि नहीं तो वो किसी से ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं ये वो, तो उसी से के वजह से अपराध होता है। तो अपने मूड ठीक से रखिए। मायापुर धाम में जब आएंगे तो उससे आपको बहुत यहाँ पे आप जो 2 दिन रह के रुकेंगे उसका अनुभूति आप पूरा जीवन भर रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वापस आना नहीं, जितना जल्दी हो सके फिर से वापस आइए, रिचार्ज करिए। और मैं हमेशा जब मायापुर में आता हूँ, मैं पहले बार जब आया था 2007 या उसी का याद आता है मुझे कि, लेकिन वो इंस्पिरेशन है बाद में। उस टाइम में मैंने सोचा था कि यदि मैं इधर रह सकता तो बहुत अच्छा था। गुरुकुल में देखा था, और गुरुकुल में मैं ये एम्बियंस को मैंने ये एम्बियंस में मैं रखूँगा तो कैसे आज कितना अच्छा होगा। वैसे भी तो मैं अभी तो 18 साल हो गया, तो मुझे नालो नहीं करेंगे ऐसे सोच के। लेकिन इच्छा था बहुत, भगवान से भी बहुत प्रार्थना किया। आज 5-6 साल से तो इधर हूँ। वैसे तो जिसको जितना मतलब डिज़ायर से भगवान पूर्ण करेंगे। ऐसे ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर्स मत मांगिए।
भगवान को प्रॉब्लम नहीं है यदि वो सब मटेरियल डिज़ायर्स भक्ति के लाइन में है। यदि भक्ति के लाइन में नहीं है, अगर भगवान आपको फुलफ़िल भी किया, आप उससे बहुत सैड होंगे। उसको पूर्ण करने के बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। यदि नहीं किया फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, अरे भगवान क्या, वो प्रभु जी तो बोले कि सब डिज़ायर फुलफ़िल होगा कि, और ये तो हो ही नहीं रहा है। फुलफिल करने का डिजायर और है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरे भक्तों का स्पिरिचुअल डिज़ायर से तो मैं अवश्य पूरा करूँगा, लेकिन मटेरियल डिज़ायर मैं देखूँगा कि ये लायक है कि नहीं है। मटेरियल डिज़ायर को फुलफ़िल किया तो फिर इधर उधर भटकेगा कि एक जगह पे रुकेगा। यदि वो होल्ड करने का लायक है, वो मटेरियल डिज़ायर को लाइक नो वो मटेरियल फैसिलिटी को जब वो देंगे तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे भगवान कृष्ण, क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं भगवान। बाकी सब जो अन्य देवी देवता है उनको तो क्या जाता है, वो लोग ऑफिशियल है। लाइक आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, आपको कुछ व्हाट क्या बोलते हैं परमिशन चाहिए या फैसिलिटी चाहिए, यदि आप रूल्स के हिसाब से है स्टैंप लगा के दे देंगे। लेकिन आपके घर में आपके माता पिता तो ऐसे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई क्या वाइन शॉप में जाएंगे, यदि आपका बहुत यंग दिख रहा है आपको वाइन नहीं देंगे। आप 18 साल के ऊपर है तो आपके पास पैसा है तो वो तो वाइन दे देंगे। वो क्या सोचेंगे कि वाइन लेके क्या करेगा, उसका कुछ मतलब नहीं, वो तो दे देंगे। लेकिन आपके घर में एक मिलेगा, क्यों? ऐसे भगवान भी ऐसे है। यदि हमारा डिज़ायर्स अच्छा नहीं है तो हमारे लिए ख़तरनाक है तो नहीं देते। यदि हमारे डिज़ायर सही है हमारे लिए, फिर कुछ डिज़ायर्स ऐसे नहीं है कि बहुत ख़राब भी है, लेकिन फिर भी यदि अभी हमारे लिए उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है तो भगवान थोड़ा सा रुक के देते। तो क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन भक्ति के बारे में, भक्ति के उन्नति के लिए यदि कुछ प्रार्थना करेंगे तो तुरंत, क्योंकि उस पर सोचने की बात ही है ही नहीं। तो इसीलिए भक्ति के बारे में यदि आप उन्नति के बारे में यदि कुछ इच्छा है तो यहाँ पे बहुत हज़ारों पूरा लिस्ट बना के भी आप भगवान से मांग सकते हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बनाया। धीरे धीरे भक्तों ने, प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बहुत सारे एंडिवर लगा के यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैसिलिटी हमारे लिए बनाया। आज हमारे कैंपस, इस्कॉन के कैंपस है पूरा 700 एकर्स यहाँ पे, 700 एकर्स। ये तो ऑफिशियल अंदर का, बाहर और बहुत सारा है, और बहुत सारे डिवोटीज़ है। बंगाली डिवोटीज़ यहाँ पे 5000 के ऊपर है मायापुर कम्युनिटी में, और फॉरेन डिवोटीज़ तो 1000 के ऊपर है। बाकी सब मिला के हम 8000 to 10,000 devotees are staying in community here totally. Regular basis. They are staying in Mayapur, in and around Mayapur. So when you go to a temple, you hardly see 100 devotees. Here there are 10,000. So 100 times. So I'm not exaggerating it. It's 100 times more. Everything is big here. The deities are very big. The temple is very big, and we are getting even more bigger temple. The land is very big. Everything is very, very big here. So you have to also make your heart very big, so that you can get maximum benefit. Yeah, and then in Mayapur it's always like you can free yourself from all your anxieties and be situated. And Prabhupada said Mayapur is like, Vrindavan is my home, Mayapur is my place of worship. Mayapur is my home or place of worship, both. So where you can forget about all your material positions, situations,
and then completely focus on our original position as the servant of Lord, and then you can pray to the Lord, pray to Krishna, and then be in that natural mood, and then that experience is what takes the jiva from the material situation to the transcendental position. So भक्ति के उन्नति ये है नहीं कि वो कौन इतना बड़ा दाढ़ी बनाया या इतना बड़ा, उसको बहुत सारा शास्त्र जानते हैं, ये वो सबसे भक्ति के उन्नति नहीं होता. भक्ति का उन्नति के लिए आपको भक्ति रस का एक अनुभूति चाहिए, और वो अनुभूति आपको ये धाम में सबसे ज़्यादा मिलेगा. और वो अनुभूति को आप अपने हृदय में रख के आप कहीं पे भी रहिए, उसको आप अपने आप वो भक्ति को आप कल्टीवेट कर सकते हैं. जब यहाँ से आप वापस जाएंगे 2 दिन के बाद, कुछ तो आपके स्थिति बदलना चाहिए आध्यात्मिक स्तर पे. यदि कुछ नहीं हुआ मतलब आप इधर है ही नहीं, मतलब शरीर तो है लेकिन मानसिक स्तर पे आप धाम में है ही नहीं. वो तो पॉसिबल है ही नहीं. मैं 101% बोल सकता हूँ. कोई भी, मैं 2008 से अभी तक 13-14 ईयर्स में इतना सारे भक्तों को आते हुए जाते हुए देखे, सबके हृदय में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ धाम में आके, ये मायापुर में स्पेशली. क्योंकि यहाँ पे बाहर में भी खाली सब भक्ति है यहाँ पे, और कोई चीज़ है ही नहीं. अब कहीं और जाएंगे बहुत सारा मटेरियल चीज़ है, वो इधर तो दिखता ही नहीं कुछ. हर जगह भक्ति है, हर जगह हरिनाम ही होता है. यहाँ पे मुस्लिम भी है, सब लोग हरे कृष्णा ही बोलेंगे आपको. तो बहुत स्पेशल है. आप कल जाएंगे आप लोगों को सब विज़िट करने, पास में ही है यहाँ से. और वो जन्म स्थान है, प्रभुपाद जी बोले यह कर्म स्थान है. यहाँ पे हमारे बगल में ही गंगा है, तो महाप्रभु हर दिन आके इधर ही दिन में 4 घंटा 5 घंटे इधर ही खेलते थे बचपन में, और इधर ही उन्होंने प्रचार किए, उधर ही पढ़ाई किए. तो ये पूरा जगह जो है महाप्रभु हमेशा यहाँ पे, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान यहाँ पे नहीं है, वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है. वो यहाँ से कितना, एक चक्रधाम 400 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, 400 किलोमीटर. वो हावड़ा से आप अलग रास्ते पे जाना होगा उसके लिए. लेकिन नित्यानंद प्रभु भी यहीं पे आए बाद में. उनका जब बड़े हुए यहाँ पे आके महाप्रभु के संग में रुके थे. तो पंचतत्व अवतार भगवान का. तो यहाँ पे आप अभी आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कुछ क्लास सुनेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. और भक्ति का रस को ढूंढिए यहाँ पे धाम में, आपको मिल जाएगा. इसीलिए आप जब कहीं पे कथा सुनेंगे, भक्त लोग बोलते हैं व्रज के बारे में, व्रज का धूली इतना पवित्र है, और व्रज धूली में आप अबसेंसेस पे करेंगे आपको भक्ति आएगा. उससे किसी को कुछ मतलब समझते हैं क्या उसका? धूली में इतना क्या शक्ति कहाँ से रहेगा? और ये कुछ क्या अतिशयोक्ति है क्या? अतिशयोक्ति मतलब जानते हैं आप, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना. तो धूली में क्या रहेगा? अरे स्पिरिचुअलिटी है तो कोई व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, अभी मैं इधर बैठ के कुछ आपको बोलने के प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ समझ. धूली में क्या रहेगा? सुनते हैं ना आप सॉन्ग्स में, इधर ब्रज धूली इतना पवित्र है, ये सब क्या है? So these places too much very much important for the devotees. कैसे? एक नया व्यक्ति को ये सब नहीं जानते, कैसे आएगा ये सब? Because of Krishna's pastime, he has also done that in his pastime earlier. तो वो ये सब प्रभु जी कुछ बोलने के प्रयास कर रहे. यस. मतलब आप बोले कि इस भक्ति धाम में ट्राई टू फाइंड द रस. हम्म. हम
I should approach or how we should approach that. या उसी के बाद उसी के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसी के लिए दूली के बारे में अभी चर्चा हो रहा है। तो व्रज दूली का इतना पवित्र है, अभी हम मायापुर की दूली भी हम बोलेंगे इतना बहुत पवित्र है। तो ये कैसे जानेंगे आप? आपके इंटेलेक्ट के स्तर पे इसका कोई आंसर आप ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग का या फिर अपने एजुकेटेड इंटेलेक्ट का उपयोग करेंगे, उसके स्तर पे हम क्या सोचेंगे? हम खाली ये केमिकल को इसमें मिक्स करेंगे तो कैसे रिएक्शन आएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये केमिकल को इसमें मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज़ के बारे में पढ़े। लेकिन एक और पढ़ाई है जो स्कूल में कॉलेज में बिना पढ़े सब लोग समझते हैं, जैसे 12-13 साल हो गए, वो है लड़की के प्रति कैसे अट्रैक्ट होना। ये तो सब लोग समझते हैं ना। तो यदि कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पागल है तो उसका सब कुछ अच्छा ही लगेगा ना उसको। उसके पीछे लॉजिक क्या है? हाँ, लव लॉजिक है क्या? नहीं, लॉजिक तो कुछ नहीं है उसके पीछे, उससे चीजें बट हम लोग जानते हैं कि ये लव मतलब ऐसे ही होता है, इसका स्वभाव ही ऐसे है। लेकिन वो उसको लव नहीं बोल सकते, क्योंकि आचार्य ने बोले कि लव मतलब वो चीज़ जो आप अपने उसमें अपना सेल्फिशनेस कुछ मोटिव नहीं देखेंगे आप। यदि आपको किसी के प्रति ऐसे प्रेम कर सकते हैं कि उसमें यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग फॉर योर ओन प्लेजर, नाइदर फॉर योर बॉडी नॉट फॉर योर मेंटल प्लेजर, एनीवेयर, इट इज कंप्लीटली सेल्फलेस। दैट्स वाई लव इज डिफाइंड बाय आवर आचार्यस अन्य अभिलाषिता शून्यम। और कुछ अभिलाषा नहीं, और कुछ इच्छा नहीं, कुछ इच्छा के बिना ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और उसके प्रति कर्म और ज्ञान ये दोनों चीज़ भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अनुकूल ये ना कृष्णानुशीलनम, जो जिस व्यक्ति के प्रति आपके प्रेम है उनके अनुकूल है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाहते कि उनको पाव भाजी पसंद है और आप ब्रेड लेके गए उनके पास, क्या वेस्टर्न वाला ब्रेड लेके गए, क्योंकि आपको ब्रेड पसंद है, वो चपाती पसंद करते हैं तो आप ब्रेड लेके गए क्योंकि आपको ब्रेड पसंद है। वो लव नहीं होगा। लव में जिसको प्रति आपका प्रेम है उसके अनुकूल होना चाहिए, और उसमें आपका कुछ हिडन मोटिव्स नहीं रहना चाहिए। वो अनुकूल यानी कृष्णानुशीलनम, तो वो खाली भगवान के प्रति हो सकता है, क्यों और एक वो किसी और के प्रति हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आप ऐसे कुछ किसी के प्रति सिनेमा में इमेजिनरी दिखाते हुए, कि सिनेमा में दिखाते ना ओ सेल्फलेस लव ये वो कर, आप किए भी तो भी आपको कोई रेसिप्रोकेशन नहीं आएगा उधर से। ऐसे कितने साल चलेगा? वो खाली इमेजिनेशन है। लेकिन भगवान के प्रति हम जब वैसे करेंगे, आपके हृदय में आपको पता चलेगा कि भगवान मेरे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे। कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को, वो एक्सपीरियंस आप खुद फील करेंगे। और भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट है यही, वो जो एक्सपीरियंस। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि साइंस में या जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने का टूल्स है वो अब लैब में जाके ढूंढ के लेके आते हैं इधर उधर, उससे एक्सपेरिमेंट करके रिज़ल्ट आने के बाद दिखता है उस सामने कि आपके आंखों के साथ देखते हैं, ठीक है ये कलर पीला हो गया मतलब मेरा ग्रेड अच्छा आ गया केमिस्ट्री में। फिज़िक्स में तो आधा चीज़ तो हवा में ये होता है कि कुछ समझते नहीं हम लोग, खाली कुछ आंसर लेके आना है। मैथ में तो इट्स जस्ट हेंस प्रूव्ड आना चाहिए फाइनली, ऐसे उसके बिना आपको। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या है
The tools are not outside your body. The tools are your own consciousness. आपका जो टूल्स है, आपका हृदय, आपके मन, आपका बुद्धि, यही है. उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, बाहर किसी और चीज़ के प्रति नहीं. तो उसमें सबसे पहला रिजल्ट क्या है? आपको शांति मिलेगी. यू बिकम पीसफुल, फुली सेटिस्फाइड. कोई भी भक्ति में आते स्टार्टिंग आपको ये फीलिंग आएगा. अब मन इधर उधर भटक रहे, आप भक्ति में आए, मंदिर में आके आधा घंटे भी आके रह के चले गए, आपको एक अलग तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो एक्सपीरियंस होता है. अभी मैं पूछूंगा तो सब लोग वही बोलेंगे, क्योंकि इट्स नेचुरल. दैट इज़ व्हाट इज साइंटिफिक नेचर ऑफ भक्ति. तो जब मैं धूली का ऐसे इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि इट हैज़ दैट पोटेंसी बिकॉज इट कैरीज द सेम वाइब्रेशन, द सेम मूड. वो हर चीज़ के प्रति कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, चेतना जो है, वो हर चीज़ में व्याप्ति होता है. तो धाम में कोई भी चीज़ है जो जड़ वस्तु, मतलब विच इज़ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो अचेतना, और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब जानते हैं ना आप लोग, जिस मूव नहीं होता है, जो इधर उधर जड़ वस्तु है, उसमें भी वो चेतना व्याप्ति होता है, चेतना का व्याप्ति होता है. तो यहाँ पे हर चीज़ में वो पोटेंसी है. तो उसके लिए एक्चुअली हमको बहुत हाई कॉन्शियसनेस चाहिए. जब आपके चेतना बहुत ऊपर है, तब आप स्वयं देख पाएंगे, उसका एक्सपीरियंस आपको होगा. कम से कम धाम में 5-6 साल रुकने के बाद आपको थोड़ा बहुत ये मैं जो बोल रहा हूँ धीरे धीरे समझ में आने लगे. अभी तो इतना तो फेथ रख के जाइए. यहाँ पे जो भी चीज़ें हर आसपास में, हर चीज़ में इतना पोटेंसी है. लेकिन हम तो हर चीज़ के बारे में नहीं जानते, लेकिन मंदिर के अंदर जाते तो समझते हैं. ओके, भगवान है सामने, इतना सुंदर है, और उतना सुंदर श्रृंगार होता है भगवान का, इतना अच्छे से कीर्तन होता है, इतना अच्छे से प्रसाद मिलता है. उससे तो सब लोग समझ सकते हैं. तो यहाँ पे आ रहे तो पहले उसका आस्वादन कीजिए धाम में, और धीरे धीरे आप धाम में जितना आएंगे उसका महत्व इतना आपको धीरे 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 एक्सपेंड होगा आपके हृदय में. उसके बारे में जानेंगे तो भगवान के हर एक अंग और जो भी चीज़ भगवान से कनेक्टेड है वो स्पिरिचुअल है. भगवान का धाम स्पिरिचुअल है, भगवान का भक्त वही स्पिरिचुअल है, भगवान के पैराफर्नेलिया वो सब स्पिरिचुअल है. इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अरे मंदिर के अंदर, घर में भी हमारे थोड़ा मंदिर बनाएंगे, उसमें जाना है तो आपको अपवित्र होके नहीं जाना है, किसी भगवान के चीज़ों से आप टच नहीं करना है. वो सब रूल्स फॉलो करने से क्या है, आपका चेतना धीरे धीरे ऊपर होगा. इसीलिए वो सब रूल्स है. अभी मॉडर्न जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो सोचता है टच किया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. अरे आप तो गिरा हुआ है ऑलरेडी, एनिमल के स्तर पे, आपको क्या होगा. और अभी तो पीपल ट्राई टू आर्ग्यू एट दैट लेवल ओनली. बट what is the platform from which you are talking? You don't understand what is the difference between purity and impurity. So these are just the rules, but the main thing is the experience you get in the process of bhakti, and that experience is what you have to carry in your heart. And that faith which you get through practical experience when you come to Dham, when you associate with devotees, that faith will lead you to a higher stages. So it's not about how much information you carry that makes you smart. You may be IITian or whatever, or
from MIT and all. But if your consciousness is very low, then you are just an animal. Because आप सब लोग DYS सेशन अटेंड किए होंगे, वहाँ पे तो इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कैसे बहुत सारे एनिमल हमसे भी बहुत होशियार है. तो जो इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, अब भगवान ने तो बहुत सारे पशु पक्षी और इंसेक्ट्स को भी हमसे ज़्यादा दिए. तो दैट इज़ नॉट ए मेजरिंग प्लेटफॉर्म कि कौन कितने पंडित है. तो इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस मीन्स वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट. तो मैटर एंड स्पिरिट के बीच में यदि आप डिफरेंस बोल पाएंगे तब आप इंटेलिजेंट माने जाते हैं. इसीलिए हमारे मानव जन्म को बहुत बहुत उन्नत माना गया. सॉरी फॉर माय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन हिंदी. बिकॉज बचपन से एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता था, जो मैं खाली 8-10 साल से पहले समझ लगी. हिंदी में नपुंसकलिंग है ही नहीं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है. न्यूटर जेंडर इज़ नॉट देयर इन हिंदी. और बाकी सब लैंग्वेजेस में तो वो है, न्यूटर जेंडर इज़ देयर. तो जब न्यूटर जेंडर है ही नहीं तो कहाँ पे के करना है, कहाँ पे की करना है, कहाँ पे का करना है, वो तो मैं कभी समझा ही नहीं. ऐसे स्कूल में रट्टा मार के टॉपर हो गए हिंदी में. तो वैसे भी सबसे बात करते तो बहुत सारे लोगों को जो बिहार इधर उधर किसी को कोई नहीं समझते, किसी को पकड़ ले से. तो लेकिन फिर भी हमको भाषा में सही से जानना चाहिए. क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में तो मैं बोल सकता हूँ बिना कुछ मिस्टेक के. ठीक है, तो मैं खाली इतना आपको इतना बताने के प्रयत्न किया कि यहाँ पे आप एक अच्छे अनुभूति लेके जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट. प्रभु जी, यहाँ पे विशेषता कुछ और बताइए. मतलब जो है, जो डेप्थ में हम लोगों को कुछ पता उतना है थोड़ा. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, जो कलयुग अवतार है भगवान कृष्ण का. तो भगवान कृष्ण कलयुग में अवतार इसलिए किए कि कलयुग में तो सब फॉलन सोल है. तो त्रेता युग में क्या हुआ कि सीता देवी ने भगवान रामचंद्र को बोला कि अरे आप तो बहुत मतलब वायलेंट है, थोड़ा वायलेंस कम कीजिए. भगवान को बोले सीता देवी ने, क्योंकि स्त्री तो हमेशा व्हाट यू से शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड. तो भगवान बोले ठीक है. और जैसे राक्षस आ गए तो बाण लेके चालू हो गया, सबको मारने लगे. तो सीता देवी को अच्छा नहीं लगा, अरे सबको मार देता है, ये हमेशा इतना वायलेंट क्यों होता है. इसीलिए फिर जब वृंदावन में आए भगवान, तो कृष्ण के रूप में, तो राधा रानी बोले नो वेपन, आपको कोई वेपन हाथ में लेना ही नहीं चाहिए. भगवान बोले ठीक है. और वृंदावन में भगवान में कृष्ण के पास चक्र नहीं था, कुछ वेपन यूज़ नहीं करता था, खाली फ्लूट पकड़ के घूमता था. लेकिन फिर भी कोई असुर आ गया तो हाथ से ही मार देता, हाथ से उनको खून कर देते थे. अरे ये अभी भी चालू है, इसको वेपन नहीं है फिर भी वो मार ही रहे, ये तो सुधरेगा नहीं. फिर बोले अगले बार यदि कृष्ण का अवतार होगा, मैं बाहर नहीं अंदर ही रह के कंट्रोल करूँगा. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत, इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट. सो ही इज़ द कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा. मतलब भगवान कृष्ण राधा रानी का मूड लेके आए. क्यों राधा रानी के मूड? क्योंकि कलयुग में तो सब गया गुजरा है, तो उनके प्रति केवल करुणा रहना चाहिए. और वो करुणा किन के पास ज़्यादा रहता है? माँ के पास करुणा ज़्यादा रहता है कि पिताश्री के पास? कोई किसी का और कुछ यू हैव एनी डिफरेंट ओपिनियन? तो इसीलिए राधा रानी का मूड चाहिए.
लेकिन युगा अवतार तो भगवान कृष्ण है, पोजीशन तो कृष्ण का है। तो और भगवान कृष्ण ने हमेशा ये सोच रहा था कि हमेशा मेरा वक्त मेरे से ज़्यादा कैसे एंजॉय करते हैं, मेरे वक्त हमेशा मेरे से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, हम लोग कभी सोचता नहीं इसके बारे में। बेंज गाड़ी है किसी के पास, सबसे ज़्यादा एक बेंज गाड़ी है, सबसे ज़्यादा ओनर को उसका डिटेल्स पता है कि ड्राइवर को। एक बड़ा आउट हाउस है बड़े आदमी का, उसमें सबसे ज़्यादा रह के एंजॉय कौन करता है, ओनर की वो उधर का रखवाला, द वन हु कीप टेक्स केयर ऑफ द प्लेस। तो एक्चुअली इफ़ यू बिकम द मास्टर you don't get so much to enjoy, but if you become servant of the right master, then you can enjoy the most. But anyways, in this material world nobody is a master. सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। लेकिन ऑन द डे ऑफ हिज ओथ, व्हाट इज द ओथ ही टेक्स? आई विल सर्व द पीपल ऑफ माई कंट्री, आई एम द सर्वेंट ऑफ एवरीबडी। सो एक्चुअली नोबडी इज़ द मास्टर हियर, नो, वैसे भी तो हम लोग सर्वेंट ही है। और ये भी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि सर्वेंट एक्चुअली रियली हैज़ enjoys more than master. So that's why Krishna wanted to come as servant, his own servant, to understand why his servants enjoy more. Yes, and then especially Radharani, because the mood, as I was telling, of the mother is very soft, and she didn't want anybody to be harmed. And if that mood is not there, then in Kali Yuga nobody will be remaining. जो त्रेता युग द्वापर युग में तो कुछ लोग अच्छे थे, बच गए वो लोग, बाकी को तो मार दिया भगवान कृष्ण। अभी कलयुग में तो कोई नहीं बचेगा। यदि मारना चालू करेंगे भगवान तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हर व्यक्ति तो गया गुजरा है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए महाप्रभु के अवतार कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण। उनका जो शरीर है वो गोल्डन फॉर्म है, वो राधा रानी का अंग है, मतलब फॉर्म। तो ये जो बाद में जो चैतन्य महाप्रभु का बाद में जो विवाह हुआ, वो राधा रानी का अवतार नहीं थी क्या? देखिए, जब आप जो बोल रहे वो मूड है, तो मैं कौन सा मूड लूँगा और मैं कौन से बॉडी पे हो, वो सब अलग अलग है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसा साइकोलॉजी में बहुत सारे इधर उधर सिखाते हैं, बट ये प्रिंसिपल को आप समझिए। खाली ये मूड लेके आया भगवान ने, मतलब जस्ट द मूड ऑफ राधा रानी। तो आप यदि किसी के मूड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आपका बॉडीली फीचर्स भी चेंज होता है उसके हिसाब से। तो इसीलिए भगवान का बॉडी भी वाइट हो जाता है जब राधा रानी के मूड में पूरा आ जाता है। इसीलिए कभी हमारे मंदिरों में भगवान कृष्ण कहीं पे वाइट फॉर्म में रहता है। लोग बोलते भगवान कृष्ण तो डार्क ब्लू है, तो वाइट कैसे है? ही इज़ ऑलवेज इंटेंसली थिंकिंग ऑफ राधा रानी's love and compassion to everybody. That's why his form is like that. So he is Krishna himself, but his mood is different. Every time Krishna doesn't have the same mood, no? Like even a big personality, when he's in the office in a different mood, when he's in the car different mood, when he's in the home is different mood, no? So when Krishna takes that most compassionate mood on the conditioned soul, and then very very loving mood towards his devotees, that is this mood as Chaitanya Mahaprabhu. And this is a very rare thing. Only once in the day of Brahma this mood is taken. So that's why this place, whatever we are trying to understand and hear, everything is very very deep, and then very very interesting as well. But it all depends on, don't try to use the mundane intellectual analysis on this. That will never give us
go by your heart, then you'll understand very easily. It's very practical because इसका जितना इफेक्ट है हमारे ऊपर और कोई भक्ति प्रोसेस का और कोई मेथड का हमारे ऊपर नहीं. जैसे आप देखिए प्रभुपाद जी विदेश में गए जहाँ पे लोग भक्ति के बारे में कभी कुछ जानते नहीं. ऐसे जगह पे ऐसे व्यक्तियों से बात करके उनको भगवान के बारे में बता के उनका चेतना इतना चेंज किया. आज वो जो प्रभुपाद डिसाइपल है वो इतने उन्नत स्थिति पे है. वो हमारे भारत देश आके यहाँ पे सेटल होके यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली से जो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे उनको इनिशिएट करके उनको भक्ति के बारे में ज्ञान और ज्ञान दे के उनको भक्त बना रहे. ऐसे कहीं पे सुना है आपने कोई करते हुए? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये महाप्रभु का मर्जी है. तो ये बहुत डीप चीज़ है कि और कहीं पे सुनेंगे नहीं कभी और कोई कर नहीं सकते. इसलिए प्रभुपाद पोजीशन इज़ वेरी वेरी हाई. वी आर नॉट टेलिंग जस्ट सेंटिमेंट हम लोग आ गए इसीलिए हमारा तो ऊपर होना चाहिए, वैसा नहीं. आप उसका इम्पोर्टेंस समझिए. आज आप देखते इंडिया में 5-6 कितना 1000 साल 1000 years before somebody came attacked the country and changed the people to some other religion. तो आज भी उनके अंदर इतना सारा मतलब फीलिंग है कि वो देयर डजंट बिलोंग्स टू द वैदिक रिलीजन. और इतना सारा तो ग्रुप्स हिंदू ग्रुप्स इंडिया में बहुत सारे. कोई कुछ चेंज ला पाया उनमें? किसी एक को चेंज कर पाया? But Prabhupada, he changed so many people going to their country. Middle East, so many Muslims, Christians, and then Jews, everybody became. And they follow more than us. अभी यहाँ पे तो मायापुर में आए इतना सारे प्रभु जी माता जी है. हम लोग तो पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है. वी फील लाइक लिटिल मोर प्रैक्टिकल. बट वो लोग तो बिल्कुल नहीं. They are always wearing sarees and then dhoti kurta. Of course, those are doing job or going to college, that we cannot expect. But otherwise also, how much we follow the tradition. They follow more than us. वो लोग हमसे ज़्यादा करते हैं. हमसे ज़्यादा मतलब कभी कभी देख के लगता है कि मैं इंडियन हूँ कि वो. तो हम लोग तो बहुत सारे चीज़ में बहुत सारे लोग इतना स्ट्रिक्ट है. वो मोबाइल नहीं यूज़ करते. They don't want to use so many gadgets. They are so traditional, Vedic. Their faith and the process and the faith in the Lord especially. Vedic हो ना हो उनका भगवान के ऊपर फेथ इतना ज़्यादा है. बहुत सारे लोग इधर शाम में कीर्तन टीम करने वाला देखेंगे आप इधर. वो लोग को तो दे डोंट हैव एनीथिंग. वो लोग आ गए ऐसे बहुत प्योर कंट्रीज से वो लोग भी. और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहते. जो लोग डोनेशन देते हैं वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर करते हैं. जितना डोनेशन आया उससे उनका जीवन चलता है. कल डोनेशन नहीं आया, दे डोंट हैव एनीथिंग. बट उनके पास उतना फेथ है इधर है हम भगवान हमारा देखभाल करेंगे. सब छोड़ के आ गए. कुछ लोग बहुत रिच कंट्री से भी सब छोड़ के आए. कुछ लोग बहुत पुअर कंट्री से भी है. शाम में एक कीर्तन ग्रुप है उसमें तो मैक्सिमम लोग वैसे है. उनका कुछ इधर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी है इधर आके बैठ के वो लोग ये कर रहे हैं. वो लोग पूरा भगवान के ऊपर निर्भर है अपने फैसिलिटी के लिए. हम में कितने में इतना हिम्मत है कि ऐसा कर सकते हैं हम लोग. तो इतना फेथ कहाँ से आया उनको? कौन दिए?
कैसे दिए? क्योंकि ये जो मूड है महाप्रभु का और ये जो भक्ति का रहस्य है वो इतना डीप, इतना सीक्रेट कि आप ओपन करेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब गहरा है वो, आप समझ ही नहीं पाएंगे। जितना जाते रहेंगे उतना मिलता ही जाएगा। तो देयर इज़ नो एंड टू हाउ मच वंडरफुल एक्सपीरियंसेस यू कैन गेट इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति। यस, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स? No doubts? Any questions? Anything about Mayapur? मैं ये पूछ रहा था कि जो कृष्ण भगवान जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जब आए तो राधा रानी भी आई होंगी। राधा रानी का मूड लेके तो आए। उनके ये पहले आए तो उनका विवाह भी तो हुआ था। उनका विवाह जब हुआ वो तो कृष्ण के तो उस टाइम में तो वो मूड प्रोमिनेंट है राधा रानी का, बट मतलब एक टाइम में 2-3 रूप ले लिए। वो तो हो ही सकता है। तो ज़्यादा उसके चिंतन में नहीं जाना है, तब आप बहुत बिविल्डर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे तो एक ही है हमारे सिंगल ट्रैक है, वो तो मल्टीपल कृष्ण कैन टेक सो मैनी मल्टीपल ट्रैक्स। लाइक वन एग्जांपल इज गिवन, जब कृष्ण ने जरासंध को मारा, सॉरी कृष्ण ने तो नहीं मारा, भीम ने मारा, उसके बाद 16,100 प्रिंसेस वर देयर, 16,100 राजा के बेटी थी। उन सबको कृष्ण ने विवाह किया। लेकिन विवाह कैसे हुआ पता है? एक ही समय पे, एक ही मुहूर्त पे, एक ही समय पे सबको भगवान ने विवाह किया। ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति थे। कृष्णा एक्सपैंडेड इनटू 16,100 फॉर्म्स। नॉट ओनली हिम बट हिज पेरेंट्स आल्सो एक्सपैंडेड बिकॉज पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन एवरी। तो बाकी लोग को तो पता नहीं, सब लोग सोच रहे कि मेरे अभी तो ये मुहूर्त पे मेरे ही शादी हो रहे, बाकी सबको तो दे कैन नॉट इवन थिंक लाइक आपके पास सडनली अभी बड़े व्यक्ति आ गए कोई, अब किसी और के बारे में क्या हो रहा है सोचेंगे नहीं। अगले बगल रूम में क्या चल रहे हो आपको मतलब नहीं। यदि यहाँ पे कोई बहुत बड़े व्यक्ति आ गए तो उनके सामने तो भगवान है, तो वो किसी और चीज़ के बारे में सोचने का तो वजह ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता है। तो not 1 or 2 tracks, 3 tracks. Krishna can have 16,100 tracks at time, and he can give that potency to his devotees also. So भगवान का शक्ति का तुलना हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते। और ये वो कितने महत्वपूर्ण है, मतलब कितना वो हाउ मच पावरफुल इट इज़ वी कैन नॉट नो। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अचिंत्य शक्ति। और हमारे फिलॉसफी को भी बोलते हैं अचिंत्य भेद तत्व। अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल, मतलब आपके भौतिक मतलब इंटेलिजेंस से आप नहीं जान सकते उसको। अचिंत्य भेद तत्व मतलब हम लोग भगवान को साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, वी आर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड। जैसे मैं बोल रहा था, इस जगह का हर चीज़ धूली भी स्पिरिचुअल है। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग हैज़ द कॉन्शियसनेस कैन परमिएट इन एवरीथिंग। सो भगवान हर चीज़ में अपने शक्ति को दे सकते हैं हर चीज़ में। तो वो हमारे तत्व, ये तत्व जानना भी, आप सब लोग इंटेलिजेंट है तो फिलॉसफी पढ़ना है तो स्टडी अबाउट अचिंत्य भेद तत्व फिलॉसफी। इट्स वेरी डीप एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द एक्चुअल फिलॉसफी। ऑल द अदर फिलॉसफीज आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। हाउ spirit, what is the difference between matter and spirit?
and how spirit permeates its consciousness in matter. That's how the whole material world is running. So if somebody wants, oh, bhakti to its sentiment, it's not like intellectual. There is the philosophy, the highest philosophy, which no psychologist, no scientist, no physicist has ever come near to. That level of depth of philosophy is there, and it's very practical, very straightforward. If you have the intelligence to understand, then go into the depth. Or else, if somebody is very simple, he can just understand through experience in the heart. Truth is it, it's possible to experience that with their proper intelligence or by gaining. Intelligence can help you. It's a tool that can help you to understand. Like for example, somebody don't know the importance of, like, one thing we can easily understand, like in our tradition we have arranged marriage system. Why an arranged marriage system is there? It's because it's not the way how it is running now. It is very scientific before. The parents used to see, because the children, they don't know, they don't have much idea about the world. So the parents, not parents, grandparents used to see, like, the proper person according to your cycle, because they know us, like looking from according to your psychological nature, according to your capability, everything. They would see a proper lady, or for a lady, proper man who can get together and then be a good companion to each other. And because grandparents, why I said, because parents have attachment, so many times the parents' decisions and all will not go so good. But the grandparents, they are not attached to you. वो तो already पक चुके हैं इस सब से. Wherever whatever they do, they do generally very according to the rules and all, because they have got a lot of maturity and experience in this field. So the whole point is, you follow a certain set of rules where you establish what will help to develop love between two people. It's the service, mutual service, and how the mutual friendship, companionship, service will develop. So all our traditional religious processes are meant for that one thing. So that is worked out in our tradition. But once you change the setup of the traditional things, and now the people are adopting Western cultural values, then you just do the rituals without understanding the mood and tradition behind it and the philosophy behind it, it will not work. That's why right now we feel like it's not working, but before it was working. Still this is still proven to much better system than the Western system of जिसको देखा पसंद आया शादी करो. The divorce rate is much higher than arranged marriages. But within arranged marriages, right now how the arranged marriages is done are also very, very wrong. Parents just see, like, according to financial status. That is just one aspect. There are much more important aspects that are seen before. Yeah. So what I'm trying to tell is, there are certain rules and regulations. If you follow, then you can get the desired effect. Similarly, when your intelligence is directed always to understand the difference between matter and spirit, then that will help you to focus on the spiritual aspect and leave out the unwanted material aspects. So intelligence will help you to gain love to Krishna only in the sense that you don't focus in unnecessarily unwanted activities, but it's just help you. But the more important aspect, you actually engage in that loving nature and serve Krishna in that. The service is most important. You serve Krishna, then you develop more love. Love means service. That's why Prabhupada said love means devotional service. It's not devotion. Devotion is a passive thing. Passive thing means
There's no active activity. If somebody says like no to his wife, oh I love you, every day morning just say I love you, and then he doesn't go out work, doesn't like earn any money, or the wife says I love you so much and she goes to sleep, and do they love each other? No, love means activity. They do something, some activity to please each other. Either husband goes get some gift, like the gift is not a small thing, like they need a big bungalow and then nice car, nice facility, whole thing. And the wife also works so hard to please him. No. That is what we like understand as love. Love is active service. So that then your intelligence is to be fixed in that activity. If your intelligence is helping in you fixing that activity, then it acts as a positive impact. Is service is important. Service is the most important because that will help you to gain experience. But the service also should be done with what you call proper knowledge and mood. ऐसा नहीं अभी बोलो वो बैग लेके उधर रखो, हाँ मुझे क्या, you're not involved, like no, you're not doing with the proper attitude, then you'll never develop that love. So we need to have a proper attitude and do actively service, both hand in hand. There is nothing like either this or that, both should go. You have a proper attitude, and then you also the services are based on our psychophysical nature, whatever is possible in our current situation, that type of service we do. ऐसे नहीं कि वो भक्त ऐसे कर रहे, ये भक्त ये सेवा कर रहे तो उनको सब लोग सब वाह वाह कर रहे, मैं भी वही करूँगा. आपसे वो टिकेगा नहीं, आप वो सर्विस करने से ज़्यादा दिन, क्योंकि आप neither you are acquainted with this kind of service, it is not suited to your current position, situation, like that. So that's why we need a guidance, always. We are always under guidance, so that anybody who's more experienced than us can guide us, so that your experiences can be quick and much more solid. Otherwise then there may be so many confusions and other things while practicing. Yes? Anything else? So conclusively, I can say like with the help of intelligence, all the processes and the activities which we are doing is to gain the mood. Yes, wonderful. Yes, that's it. Anything else? So shall we end here? जय श्रील प्रभुपाद की जय, पंचतत्वों की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा माधव की जय, नरसिंहदेव की जय. I didn't tell any past tense of any Jagannath or Nrsimhadev or anything. When you go to that places, when you visit, then you learn more. Of course, I'll tell a little bit about Nrsimhadev. Maybe you'll go for darshan right now. Right now they're going for darshan. So we got Nrsimhadev here because Nrsimhadev is called Bhakta Vigna Vinashak. His appearance is meant for protecting his devotees. Why did Nrsimhadev appear? What is the pastime? Not to protect Prahlad. That is the one. Hiranyakashipu is just the detail of killing him, is by which he is giving protection to Prahlad Maharaj. So his appearance is just for protection of his devotees. So there was a time in Mayapur then where ISKCON was facing a lot of problems because there were some militants from Bangladesh who attacked our place because it's next to Bangladesh, and there were so many other problems going on. So then we got Nrsimhadev here, and then Nrsimhadev here is in the Ugra Rupa. Ugra means very ferocious form. South India they worship, like I am from Hyderabad. There Nrsimhadev means sab log, they are okay with worship of Nrsimhadev, but anywhere else nobody worships because his form is very ferocious. If you make mistakes, then you'll have serious implications on it. So that's why the Ugra Rupa or this form of Nrsimhadev is worshipped only by brahmacharis. Grihasthas don't worship. I mean,
You can pray, but you cannot engage in direct service, because that angry mood is not conducive to grihastha life. Then you also, if you make some aparadh, then family life will not go well. So anybody who tried to worship Nrsimhadev in Ugra Rupa, they had problems in their family life. So that's why only Naistika Brahmacharyas worship. But everybody can pray. Praying is just for protection, but engaging in direct service. So here when they bought Nrsimhadev because of so many problems and all, the biggest question was who will worship? Who has the guts to go near Nrsimhadev and worship? Then the senior most pujaris of Mayapur, Jananivas Pankajangri Prabhu, who are Prabhupada disciples, they came forward to worship. And they started worshipping. And then they said to us that though Nrsimhadev is very ferocious, whenever one form of the Lord comes to another place, they adopt the same mood. As I was telling, Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Radharani. Similarly, Nrsimhadev also adopt that mood of karuna or compassion. So here Nrsimhadev is also very compassionate. Other place Nrsimhadev is little more violent. So he's very compassionate here. So here maximum number of offerings goes to Nrsimhadev only, of devotees. Any problem you have, many times many devotees pray when they are seriously ill or they have any serious problem, they pray to Nrsimhadev. They do special puja to Nrsimhadev, take tulsi from Nrsimhadev, and there are so many stories that it got immediately cured. But as I said right in the beginning, material desires, be careful. Whether Krishna wants to fulfill or not, it's up to him. He didn't write in the will that he will he didn't agree that he will fulfill your material desire. If it is conducive to bhakti, it's fulfilled. But as such, Nrsimhadev is very, very merciful here. All of us, anybody who's staying here, anybody who visited, we all have our personal experiences praying to Radha Madhav, Nrsimhadev and Panchatattva. And you also will get all those experiences, because that's the spiritual science, spiritual process. It runs through prayers, and then service, and the experiences gained through them. And here is 100 times minimum. So more quicker. Yes. Okay. I wish you a wonderful experience in the Dham, and welcome you all again to Mayapur. Just stay healthy. Eat here and there, but don't eat so many fast foods here and there that you get sick. Eat only what you can afford to digest. That much. Yeah. Anyway, 2 days you will not get sick. You may get sick once you go back. If you eat here and there. It's still only 2 hours. Okay, Hare Krishna. Hare Go. Thank you. Jai. Thank you for the nice words.